ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट में डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन फैमिली में। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली के अंदर पढ़ा कि उसकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ इन दिस lecture we will discuss about the oxidation state and the reactivity, chemical reactivity, and the first part of a chemical reactivity is reactivity toward the hydrogen and their properties of the hydrate. So we'll discuss this topic. Okay, so now here oxygen family. So in the oxygen family, first chemical reactivity is there. So chemical properties of oxidation state. First one is oxidation state, and second one is a trend in a chemical property. First, reactivity toward the hydrogen. Second, reactivity toward the oxygen, and third is the reactivity toward the halogen. So today we will discuss mainly two topics: reactivity toward the hydrogen and oxidation state. Okay. So oxidation state. If you see the oxidation state, generally we know that the general electronic configuration is NH2NP4. What is the electronic configuration? Electronic configuration is NH2NP4. Or if you write orbital structure, then it has a 2 electron in the s orbital and how many 4 electrons in a p orbital. So generally if you see only 2 half-filled orbital or 2 unpaired electron present in this oxygen family. Okay, and it need how many electron to complete its octet? It require only 2 electron to complete its octet. Okay, so oxygen require only 2 electrons to complete its octet. तो इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन. तो अब हम यहाँ अगर बात करें कि हाउ कैन द ऑक्सीजन फैमिली कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. बाय द gain of electron or by the sharing of electron. Two possibilities are there. Oxygen members, so when it gaining a 2 electron, they can show the -2 oxidation state, and if they are sharing the electron, the possibility number of possibilities are there. First is only to these 2 half-filled orbital participate in a covalent bonding. If only this 2 orbital or 2 half-filled electrons participate in bonding, then oxidation state will be +2. Okay, but in case except oxygen, if you see except oxygen doesn't have a d orbital, but except oxygen, rest of the elements like sulfur, selenium, tellurium, polonium having a d orbital. So the electron can move from s orbital to d orbital. Here's the configuration: nh2, np4 and nd0. Okay, so first possibility that one electron moves from p orbital to d orbital. So new configuration will be nh2, np3 and nd1. So it shows कि how many unpaired electron? 4 unpaired electrons आप इसे in a first excited state. So in the first excited state, it having a 4 unpaired electron. So the 4 electron can participate in covalent bonding. So there will be its oxidation state may be +4. Okay. Second possibility is there. Okay, the configuration is, again we write nh2, np4 and nd0. So one electron from the p orbital and one electron from the s orbital will excite to the d orbital. Then the new configuration form ns1, np3 and nd2. It means how many unpaired electrons? 2 plus 3, 5 plus 1, 6. So 6 unpaired electrons are there and they can participate in covalent bonding. Therefore, the possible oxidation states are, the possible oxidation state of this group is +2, +4 and the +6. In the normal state, in the first excited state and then the second excited state, it can show the +2, +4 and +6 oxidation state. Okay, let me discuss oxidation state. If you see, the stability of -2 oxidation state decreases down the group. ठीक है, क्यों डिक्रीज कर रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. We know that oxygen is having a highest electronegativity, and electronegativity decreases down the group as the negativity decreases, and second one, size increases or metallic character increases, so they have a very less tendency to gain electron. So oxygen normally form dioxides. Oxygen normally form which kind of compound? They form
dioxides, but the rest of the element have a very less tendency to form a compound in which they have a -2 oxidation state, very less tendency. तो एक बहुत ही कम टेंडेंसी हमको वहाँ पे देखने को मिलती है किसके अंदर, अदर एलिमेंट में, ड्यू बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. ठीक है. पोलोनियम इनफैक्ट अगर उसको हम देखें डजेंट एग्जिबिट एनी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, पहले हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन की बातें करते हैं. ऑक्सीजन में हमने कहा कि जो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैक्सिमम कंपाउंड्स में मिलती है वो -2 है, और ये हमको पता है ऑक्साइड्स बनाता है. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, बहुत आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड फॉर्म ऑक्साइड्स. सो इन द ऑल द ऑक्साइड्स हैविंग अ ऑक्सीजन हैव -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट ऑक्साइड्स. ठीक है. आयनिक कंपाउंड है, उसको ऑक्साइड्स को छोड़ दो तो पॉसिबिलिटी है कि वो परऑक्साइड बना लेता है, सुपर ऑक्साइड बना लेता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे और जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इन द परऑक्साइड क्या है, -1. परऑक्साइड का एग्जांपल हमको पता ही है, H2O2 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ परऑक्साइड. इन द सुपर ऑक्साइड हैविंग अ -1/2, तो कोई भी एग्जांपल आप उठा सकते हैं. KO2 इज देयर. O2O3 in the molecular form it has 0 oxidation state. Okay. And if you see 2+ oxidation state also possible in oxygen. वो अलग बात है कि ऑक्सीजन इज अ सेकेंड नेक्स्ट most electronegative element than fluorine, but the fluorine is more electronegative than oxygen. So when the oxygen combined with the fluorine, then oxygen will show the plus oxidation state. So in the O2F2 it has +1 and in OF2 +2. So they are the oxidation state of the oxygen. Clear? ये oxidation state है किसकी, ऑक्सीजन की. नेक्स्ट आइए, मोस्ट कॉमन अनदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम अगर देखें तो हमने अभी बात की कि +4 और +6 है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में. हाँ, मोस्ट कॉमन है, बट द एलिमेंट्स अगर हम देख रहे हैं तो +2, +4 एंड +6 मिल रहा है. और क्यों मिल रहा है उसका कारण मैंने आपको बता दिया. ठीक है. अब जो हम देखें तो जो भी कंपाउंड बना रहे हैं तो हम जनरली देखते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वो जनरली फ्लोरीन के साथ देता है या ऑक्सीजन के साथ देता है, बिकॉज दे आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो हियर ऑल्सो selenium and tellurium usually show +4 oxidation state in their compound with oxygen and +6 with fluorine, because fluorine and oxygen highly electronegative और वो promotion of electron में support करते हैं. बट हमने कहा कि जो स्टेबिलिटी है +6 के ऊपर से नीचे आने पे क्या आती है, घटती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड द +4 की स्टेबिलिटी बढ़ती है. ठीक है. तो इसलिए ऊपर से नीचे आने पे जो टेंडेंसी है +4 देने की वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू +6. यानी पोलोनियम में अगर आएंगे तो +4 आसानी से मिलेगा, और सल्फर में आएंगे तो +6 मिल जाता है बड़े इजी. और यहाँ पे अगर बॉन्डिंग की बात करें तो +4 +6 में क्या मिलेगा, कोवेलेंट, क्योंकि प्रमोशन हो रहा है वहाँ पे. +4 के केसेस में कहाँ और क्या हो रहा था, प्रमोट हो रहा था p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन किस में, d ऑर्बिटल में. और +6 के केसेस में 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट फ्रॉम द d ऑर्बिटल एंड 1 फ्रॉम द s ऑर्बिटल टू द d ऑर्बिटल. तो दे आर द प्रमोशन. नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ +6, हमने बात कर ली. उसके बाद देखो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हम लोगों का मेनली आपको याद रखना है. तो अगर हम जनरल बात करें तो व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, -2 है, +2 है, +4 है, +6 है. इन जनरल +2, +4, +6 में अगर देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है. हाँ, इन द केस ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई एलिमेंट अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अगर वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अगर +4 है तो +4 से वो कहाँ जा सकता है, +6 में जा सकता है, और +4 से किधर जा सकता है, +2 में या 0 में जा सकता है. तो इसका मतलब है कि यहाँ इस केसेस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की पॉसिबिलिटी होती है. बहुत आसानी से होता है ना. तो दोनों पॉसिबिलिटी. हाँ, अगर वो +4 से +6 में जंप कर रहा है तो यहाँ पे वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो कैसे बिहेव करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. बट टेंडेंसी टू शो द रिड्यूसिंग एजेंट also decreases down the group because the stability of +6 oxidation state decreases down the group. Clear? So this is the trend in the oxidation state. Next is we have trends in the chemical reactivity. So we have a hydrogen reactivity toward the hydrogen, reactivity oxygen, and reactivity toward the halogen.
In this lecture, we will discuss only reactivity toward the halogen. Okay. In the next lecture, we will discuss oxygen and reactivity with oxygen and the reactivity with halogen also. So, firstly, when it reacts with the hydrogen reacts with this group element reacts with the hydrogen, form a dihydrides. Okay. Or which type of hydrides? They form H2E type of hydride. E is a sulfur, selenium, tellurium, polonium. Like if you see H2O is a possible, H2S is possible, H2Se is possible. So they are the called hydrides. Okay. So they form H2E type of hydrides. है ना. अब अगर हम हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी को बात करते हैं तो हम हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी में बहुत नॉर्मल चीज़ें पढ़ते हैं. एक सबसे पहले तो हम उसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. स्ट्रक्चर में फिर बॉन्ड एंगल्स को पढ़ते हैं. थर्ड फिर एसिडिक कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं. थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं. और क्या डिस्कस करते हैं उसके अंदर कि उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे आर द प्रॉपर्टी जनरली वी आर डिस्कसिंग इन द हाइड्राइड्स और रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन. तो फर्स्ट से हमें यहाँ पे अगर देख रहे हैं क्या है हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर. तो पहला सबसे पहला एसिडिक कैरेक्टर को देखो. तो एसिडिक कैरेक्टर देखो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है ना. तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2Te. तो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन. ठीक है. कोई भी ग्रुप कितने आसानी से प्रोटॉन दे सकता है वो उसकी क्या कहलाता है, एसिडिक कैरेक्टर कहलाता है. और प्रोटॉन वो कितने आसानी से दे सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो जैसे से हम ऊपर से नीचे के हो जाते क्या हो रहा है, साइज इंक्रीजेस and the bond length also increases, so the bond strength decreases. So this is the reason, and we can say that bond dissociation enthalpy decreases from top to bottom. और ऑक्सीजन टू किसमें T तक क्या हो रहा है, bond dissociation enthalpy decreases, so they have a more tendency or their tendency to release hydrogen as proton increases. So the acidic character increases from H2O to H2PO. ठीक है. तो the H2PO is the most acidic, H2O is the least acidic. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर. सेकेंड अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, किसकी बात करें, स्ट्रक्चर की. तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हाइड्रोजन हाइड्राइड्स, हमने वाटर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा, सभी को वाटर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद भी होगा. कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, हियर इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, वन लोन पेयर एंड सेकेंड लोन पेयर. इट इज अ बेन शेप with bond angle 104.5 डिग्री है ना. ये आता है हमारे पास विद टू लोन पेयर. हाँ, बॉन्ड एंगल इज लेस देन द एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए. और हाँ, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होता है. तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.28 डिग्री, बट यहाँ पे 104.2 है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. क्लियर है. तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जब भी हम अगर शेप की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर हमें मिलता है कौन सा, बेन शेप मिलता है विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एंड ऑल द हाइड्राइड्स हैविंग अ टू लोन पेयर एंड अ टू बॉन्ड पेयर. बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर हम देखते हैं तो H2O, फिर हमारे पास क्या मिलता है, H2S मिलता है. फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जो उसकी बॉन्ड एंगल किसकी कम मिलेगी, H2SE की मिलेगी. और सबसे छोटा अगर हमको मिलता है कोई तो वो कौन मिलता है, H2TE मिलता है. ठीक है. अब हम कहते हैं कि बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, घट रहा है या डिक्रीज कर रहा है. वाई द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस. तो वहाँ पे एक रीजन आपको याद रखना है कि जैसे से हम मूविंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, टू बेसिक पॉसिबिलिटीज, साइज इंक्रीजेस. ठीक है. एंड सेकेंड वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजेस. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू T. ठीक है. उसके कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो हमारे पास जो बॉन्ड पेयर थे, शिफ्टेड अवे एंड अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम. ठीक है. सो द रिपल्शन जो होगा बिटवीन दिस पेयर वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा. और जैसे जैसे रिपल्शन डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिक्रीजेस. ठीक है. तो बिकॉज वाई, तो बेसिकली आंसर इज देयर because size increases, electronegativity decreases, then the electrons goes away and so repulsion decreases. That's why the bond angle decreases from H2O to H2Te. Clear. नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो रिलेटेड विद द डिसोसिएशन.
तो जैसे हम कहेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहे टॉप टू बॉटम, थर्मल स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो थर्मल स्टेबिलिटी सी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीजेस H2O to H2PO। व्हाई? बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर थर्ड क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन में रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। अब ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? तो फिर वही बात, कितनी आसानी से EH बॉन्ड टूटेगा उतनी आसानी से क्या देगा? H देगा, है ना। तो वहाँ पे अभी हमने कहा कि बॉन्ड ब्रेकिंग या थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे डिपेंड कर रही है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड बिकम वीक एंड उसको तोड़ना में क्या होगा? आसान होगा। तो EH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जो भी अगर हम बात करें यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही? इंक्रीजेस फ्रॉम H2S to H2T। क्यों इंक्रीज कर रही है? रीजन इज देयर, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, तो एक्सेप्ट वाटर ऑल आर हैविंग अ कौन सी टेंडेंसी उनमें? रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम हमेशा पढ़ते, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक हमारे पास मेडिकल में, PMT में, IIT में, AIEEE में क्वेश्चन, वो नेगेटिविटी बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए कि क्यों बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। तो उसका रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। दूसरा पूछा था एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये क्वेश्चन आया। तीसरा एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि वाटर लिक्विड है, H2S गैस है, वाई? वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई है, क्यों है? तो अगर इस चीज़ को देखो हम, तो बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मली H2O का क्यों हाई है? क्यों हाई है यहाँ पे? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हाई है, क्यों हाई है? ड्यू टू H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण वाटर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई है। ठीक है, नहीं तो बाकी जो रीजन होता है कि जब हम ऊपर से नीचे, किसके कारण? याद रखना, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है वाई H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, why H2 has a more melting point than H2S, why H2 has a more boiling point than H2S? आंसर इज in each and every case आंसर क्या है? सेम है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर, जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है एंड इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। सेकेंड ट्रेंड देखो, क्लियर। सेकेंड देखो, अगर एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ दो यहाँ पे, तो बाकी देखो तो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है, इंक्रीजेस। वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस? बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम सल्फर टू टेलुरिनियम एंड द जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, हम हमेशा पढ़ते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर साइज। और जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो वी नो डैट साइज किसका सबसे बड़ा है? T का, देन उससे छोटा S, देन उससे छोटा S। तो वहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर। तो दे आर द रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन। वी हैव डिस्कस हियर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन। क्लियर। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन